Dr. Jitendra Kishtwadia, Scientist Emeritus, CSKHPKV, Dr. Alka Goyalji, Dean, College of Home Science, Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, our conveners, coordinators, co-coordinators, entire faculty of Community Science, Home Science of 3 universities, students, scholars, and other participants. Although my background is as a geneticist and molecular breeder, but at this position, I just look in a broader way around the world. When I was working in wheat, of course, I was worried about its quality, its nutrition. If some of the genes, they are going to be transferred into the background of our existing varieties for disease resistance, for quality parameters, for many other things, then I was worried about its chapati making quality. I was worried about its other uses. How can I sell this chapati to the entire world? I think if we just look at the right of human being in our entire society of the whole globe, education, food, nutrition, health, fitness, and respect to all is needed. Now, whenever you are working in any crop, you are dealing with any animal. First thing is what you are going to do with this animal or plant for the sake of whole mankind. The target is our market. The target is our stakeholders who can change into industry. I may cite here some examples. In mountains, starting from Jammu Kashmir to Uttarakhand, we are looking at some important crops which are ignored sometime. Amaranthus, buckwheat, chinopod, minor millets, people they have forgotten. Very less breeding program, very less crop improvement programs, agronomic practices, our germplasm resources, they are going to be eroded. Now, this is the responsibility of the market. They should go backward now. First of all, let us look at the market. The entire world is now striving hard to look at the importance of minor millets, oatmeal. People, they are reverting back to these crops. What for? For their nutrition, for their health, for their fitness, and many more. Of course, if we are having sufficient food, we are enriched with nutrition, having good health, we are fit, then and only then we can think of good education. We can think of moving ahead with respect in the society. जब भी मैं कम्युनिटी साइंस की बात करता हूं, मुझे अपना स्कूल का वो वक्त याद आता है. आई एम एल्डेस्ट
among us, the children in family. We are 5 brothers, no sisters. Being eldest, my mom, she started teaching me how to knead the dough. मैंने आटा गूंथना प्राइमरी में सीखा। जब मैं आटा गूंथता था, माता को देखता था, तो माता को देखते देखते मुझे लगता कि पानी डालते हैं, ये इकट्ठा कैसे हो जाता है। ये इकट्ठा होकर के उसके बाद एक पेड़ा बन जाता है और फिर माता इसको थोड़ी देर बाद ढक के रखती है, थोड़ा रेस्ट देती है और फिर चपातियां बनाना शुरू करती है। मुझे ना मालूम था एक दिन मैं व्हीट जेनेटिसिस्ट बनूंगा और इसके बैकग्राउंड को जानूंगा। मैं धन्यवादी हूं अपनी मां का, जिसने मुझे वो आटा गूंथना सिखाया। कभी भी अकेला रहा तो मां को याद करके वो चपातियां बनाई। हर स्टेप पर चपाती बनाते हुए आज भी कुछ न कुछ सीख रहा हूं। आटा लेने से पानी डालने तक और आटा गूंथ करके उसको रखने तक, तवे पर पहुंचाने और चपाती को फुलाने और खाने तक, मुझे ऐसा लगता है मेरी मां मुझे रोटी खिला रही। She is no more in the world now. I lost her 2 years back, but I remember her today. I am thankful to you all. You invited me for this program, जहां आज मुझे मेरी मां याद आ रही। ये मां का सिखाया हुआ सब कुछ हम किस तरह से पूरे विश्व को दे सकते हैं। भारतीयों के अंदर बहुत ताकत है, हमारे खजाने भरे हुए हैं, हिमालय खजानों से भरा पड़ा है। आज शिक्षा पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? हम इस नई शिक्षा पद्धति की ओर क्यों गए, क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हम इसे मार्केट तक नहीं ले गए। हमें विश्व को दिखाना होगा कि हमारे पास कौन सा ऐसा हुनर है, हमारे पास कैसा टैलेंट है जो विश्व को आश्चर्यचकित कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा बकव्हीट का। रशिया के लोग बकव्हीट का दलिया बनाते हैं और उसको काशा कहते हैं, KASHA, काशा। हम दलिया कहते हैं, वो काशा कहते हैं। They advertise this buckwheat in a way whole Russia, China, Japan, Korea, these countries were after buckwheat, the importance of buckwheat, how to sell it. They have just given a slogan: when kasha is on spoon, baby will bark soon. Such a beautiful slogan used to attract moms, children to take this buckwheat, consume it, and become strong. The entire world is looking for such crops today. कौन है जो ओट मील नहीं लेना चाहता? कौन है जो अमरंथस के लड्डू नहीं खाना चाहता? कौन है जो माइनर मिलेट रागी को का इस्तेमाल नहीं करना चाहता? आज हमारे पास एक चैलेंज है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये ऐसे पहाड़ हैं जहां खजाने भरे पड़े हैं। मैं एक फसल का नाम लेता हूं, बार्ले। बार्ले में इतनी विविधता है इन पहाड़ों में। हम एक ही टारगेट करें, माल्ट, पूरा विश्व हिल जाएगा। सिंगल माल्ट, डबल माल्ट, इसका पूरे विश्व के बाजार में इतनी जरूरत है। कौन लेकर जाएगा? आपका साइंस, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस। यही वो विज्ञान है जो साइंस को चमक देगा। भले ही एक ब्रीडर, एक जेनेटिसिस्ट, एक एग्रोनोमिस्ट, एक एंटोमोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजिस्ट कितनी भी ताकत लगाए, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट,
एक एनिमल जेनेटिसिस्ट, एनिमल साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट कितनी भी ताकत लगाए, कितनी भी खोज करे, जब तक होम साइंस, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसको अपना रंग नहीं चढ़ाएंगे, तब तक आप इसको मार्केट तक नहीं ले जा सकते। मैं समझता हूं कि होम साइंस सर्वोपरि है, जिसको हम जन्म से अपनी माता से प्राप्त करते हैं, अपने घर से प्राप्त करते हैं, अपने घर से सीखते हैं। भोजन को पैदा करना और उसको निवाले तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी साइंस है। मैं आप सबका धन्यवादी हूं कि आपने आज मुझे बुलाया और मुझसे कुछ सुनना चाहा। जो हृदय की मेरी पुकार है वो मैं कह रहा। इसमें हमारी नारी शक्ति का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। इनके हाथों में न जाने उस खुदा ने कौन सा हुनर भर के रखा है कि जब माँ अगर रसोई में रोटी नहीं देती तो रोटी स्वाद नहीं लगती। माँ अगर वहां पर इसको तड़का नहीं लगाती तो हमें मजा नहीं आता। आपने कितनी ही रिसर्च की हो, आप नोबेल लॉरेट हैं, तब भी आप किचन में जाकर उस माँ को याद करते हैं जिसने इसको, होम को साइंस बनाया, होम को विज्ञान बनाया। आज वो विज्ञान चरम सीमा पर है। एक समझने की जरूरत है, इसको तिरस्कृत नहीं, इसको ऊपर उठाने की जरूरत है। आज विश्व के बाजार में यही वो कम्युनिटी साइंस है जो एक नया रूप आप सभी विज्ञान को देगा। हमारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, हमारी जड़ी बूटियां हैं, हमारे कुछ अरोमा वाले प्लांट हैं, उनको किस वक्त किस तरह से कहां उसका इस्तेमाल हो सकता है। अरे सेफ्रॉन का इस्तेमाल करना होम साइंस से सीखिए। सेफ्रॉन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक क्यूमिन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मुगलों के जमाने में ये चीजें इस्तेमाल होती थी। उनके शेफ अपनी माताओं से ये हुनर लेकर आते थे कि इसका इस्तेमाल किस समय हमें काला जीरा को, ब्लैक क्यूमिन को सब्जी में डालना है। अगर असामयिक उसमें डालेंगे कड़वाहट पैदा होगी। वो हुनर किसके पास है? वही ये विज्ञान है। इसके पीछे कितनी जबरदस्त रिसर्च है। आज हमारे पहाड़ों के अंदर कैसे कैसे एक डिजाइन छुपे पड़े हैं। हमारे गांव की महिलाएं, हमारे ट्राइबल रीजन्स की महिलाएं ऐसे ऐसे हुनर जानती हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन जानती हैं। उनको किसने सिखाया? कौन सी एजुकेशन ने सिखाया? कौन सी पद्धति ने सिखाया? उस भगवान ने सिखाया। उस ईश्वर ने उनके अंदर वो गुण जो है जन्म से उनके अंदर दिया है। उनके जीन में वो गुण है, उनके जीन में वो पेशेंस है, उनके जीन में वो सहनशीलता है जो पूरे परिवार को पालती है, पूरे परिवार को संवारती है, सजाती है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा तनख्वाह अगर किसी को दें तो अपनी माँ को देंगे। सबसे ज्यादा तनख्वाह की हकदार हमारी माता है, हमारी बहन है, जो हमारे मुंह तक वो निवाला पहुंचाती है, घर को सुंदर बनाती है, समाज में हमारी इज्जत बनाने के लिए वो ताकत पैदा करती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अपने घर का। हर चीज हर वक्त मैं एक साइंस के माध्यम से देखता रहा। मेरे घर में एक शेफर्ड फैमिली since last 45 years they are with us from Chamba tribal area, and they have one daughter. Her name is Madhu. She was weak in her studies. We tried our level best, but she could reach with great difficulty up to high school. And my father just asked me time and again, at least she should qualify metric. मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो कम से कम हाथ में होना चाहिए इस बच्ची के।
मैंने कहा हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएंगे ताकि ये पास हो। उस बच्ची को हमने कभी ना जाना कि इसके पास क्या हुनर है। ये जरूरी नहीं कि शिक्षा में कोई बहुत उच्च कोटि पर जा रहा है तो उसके पास हुनर भी होगा। अगर शिक्षा में बहुत कमजोर है तो उसके पास हुनर ना होगा, ऐसा नहीं। मेरी माता ने उसको पहचाना और एम्ब्रॉयडरी और दूसरे गुणों में, मेहंदी मेहंदी लगाने में वो जबरदस्त डिजाइन उस बच्ची ने पैदा किए कि आज मेरे क्षेत्र में वो बच्ची एक फैशन डिजाइनर के रूप में जानी जाती है। पूरी वैली में उसकी एक डिमांड है। वो कोई नौकरी नहीं करती, उसमें घर में इतना काम है कि उसके पास वक्त नहीं, हमसे बात करने के लिए वक्त नहीं, इतना वो काम करती है, अपने घर को चलाती है। हर हस्बैंड is a shopkeeper, cloth merchant, but she's earning more than him. Can you imagine? एक हाई स्कूल की छात्रा, और जो मुश्किल से हाई स्कूल किया हो, क्या पैशन उसके पास रहा, कहां से वो हुनर आया, कहां से उसने वो डिजाइन लाई। कभी मैं चाहूंगा उस बच्ची को कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में ला करके उसको आपसे मिलाना, ताकि वो अपने उस हुनर से आपको अवगत करा सके। ऐसी हुनर वाली बच्चियां हमारे गांवों में छुपी हैं। ये टैलेंट हंट करने की जरूरत है, इसलिए नई शिक्षा पद्धति की जरूरत पड़ी। आओ हम मिलकर इसका अवलोकन करें। मैं कई बार कह चुका हूं, एग्रीकल्चरल and allied sciences, they are seeking only 1 to 3% of entry points. Why is it so? हम भारतीय अभी डॉक्टर और इंजीनियर की लाइन से बाहर नहीं निकल सके। बच्चे को क्या बनाओगे? डॉक्टर बनाएंगे। बच्चों को क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। कुछ और भी लाइन होती है या नहीं? कुछ और भी रास्ता होता है या नहीं? ये मालूम करने के लिए नई शिक्षा पद्धति की जरूरत है। आओ इस होम साइंस को, इस फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस को, इस कम्युनिटी साइंस को अपने स्कूलों में लेकर चलें। मैंने कि इसको स्कूलों में लेकर चलो। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जब ये सब्जेक्ट होगा, अपने आप इसकी डिमांड बढ़ेगी। हमारी बच्चियों में जो हुनर है वो बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली वो बाहर आएगा। इसके लिए हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत है। हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखने की जरूरत है। हम किस तरह से अपने गांवों से, अपने स्कूलों से जुड़ सकते हैं। मैंने अभी 26 जनवरी को जो आगाज किया है कि हम अपने पीएचडी के छात्रों को, एमएससी के छात्रों को, छात्राओं को ये मौका दिया जा रहा है कि जब भी उनको छुट्टियां हों वो अपने घर में, गांव में जाते हैं, वहां 2-3 स्कूलों को इकट्ठा करके वहां पर अपने कॉलेज के बारे में बताएं, अपने हुनर के बारे में बताएं। बताएं कि साइंस में ये भी एक रास्ता है। उनको मैं एक लेक्चर का 1000 रुपया विश्वविद्यालय देगा। ये मेरा आगाज मैंने 26 जनवरी को किया है। 1000 रुपए एक लेक्चर के लिए उनको दिया जाएगा। फंड का इकट्ठा करना मेरी जिम्मेवारी है, काम करना आपकी जिम्मेवारी है। ये बच्चों के लिए मैंने ऐलान किया है। देखते हैं कितने बच्चे सामने आते हैं। आए, हम इन बच्चों के माध्यम से आपके मास्टर स्टूडेंट्स, आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आपके पीएचडी स्कॉलर्स ये संदेश आपके कॉलेज से गांव गांव में लेकर जाएं। उनको कुछ रेम्यूनरेशन दीजिए, उनको सर्टिफिकेट दीजिए, ये एक पद्धति बनाइए। यही हमारी नई शिक्षा पद्धति इंतजार कर रही है, ये उसका एक हिस्सा बनाइए। जब ये सब्जेक्ट स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस होगा, अभी हमारी राज्य स्तर पर जो मीटिंग होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर जो मीटिंग होंगी, मेरा एक ही आवाज रहेगी, होम साइंस को कम से कम स्कूल तक लेकर जाइए और स्कूलों में 2 लेक्चरर इसके अपॉइंट करिए, ताकि
घर घर से वो हुनर, दादी माँ का हुनर वो निकल कर बाहर आए। वो डिजाइन, वो स्वाद, वो मदिरा, वो मदरा, वो पकवान, वो चीजें वो बाहर आए। ये मदिरा दूसरा ना समझना, ये मदरा हमारा एक धाम का एक पार्ट है वो खाने का, इसको कहीं दूसरा ना ले लें। हाँ, ये डॉक्टर धालीवाल बखूबी समझते हैं। सो क्रिएट पैशन, एक पैशन क्रिएट करें अपने बच्चों के अंदर। आओ, कितने बच्चे आपके पास, यहां मैं पूछता हूं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, वेटरनरी के अंदर, होम साइंस के अंदर अपने एक पैशन से आते हैं, जुनून से आते हैं। समाज भरा पड़ा है बच्चों से। हमारे बच्चे सभी गलत राह पर चले जाते हैं, दूसरों को देखकर डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, जबकि हुनर उनके अंदर कुछ और था। हुनर एक डिजाइन करने का था, हुनर एक पक्षियों को पढ़ने का था, लेकिन वो दूसरी लाइन में चला गया जहां उसका पैशन नहीं था। हुनर उसका होम साइंस करने का था, वहां वो जाता तो पैशन इतना अपने बखोरता, उस गुण से वो गगनचुंबी पर पहुंचता, विश्व स्तर पर जाता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर पैशन से लोग जाते हैं और नोबेल प्राइज तक पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक हिस्सा है, उसमें अपने सक्सेस स्टोरीज, दादी माँ की सक्सेस स्टोरीज, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको बताए, ऐसे अद्भुत कई एग्जाम्पल हैं, कई उदाहरण हैं, कई भाषणों में मैं ये बात बोल चुका हूं। उनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना करके आप अपने जो है वेबसाइट पर डालिए। एक पोर्टल बनाइए जहां उन छुपे हुए हीरों को प्रदर्शित करिए। अगर वो दादी माँ नहीं भी पढ़ी है, उसका उसी भाषा में वो वीडियो बनाइए, चाहे 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, उसको आप अपने पोर्टल पर लाइए कि वो किस तरह से घर में काम करती थी, वो हुनर जो उसके अंदर छुपा था, वो किस तरह से उसने उसको उजागर करके मार्केट तक लेकर गई, कैसे उसकी जो है उस गांव में बल्ले बल्ले होती थी, कैसे सभी उस दादी माँ को जानते थे, उसके पास कौन सा ऐसा नुस्खा था। छोटी छोटी बातों से, क्या चपाती पेट पर बांधकर पेट की दर्द ठीक हो सकती है? हो सकती है। उस चपाती के अंदर अजवाइन बांधकर माता जो है जब पेट पर उसको बांधती थी तो पेट का दर्द ठीक होता था, गोलियां खाने की जरूरत नहीं। ये हुनर किसके पास है? ये होम साइंस, कम्युनिटी साइंस के पास है। ये कम्युनिटी साइंस उस हुनर को बाहर लाए और विश्व स्तर तक दुनिया को पहुंचाए कि चपाती पेट पर बांध करके हम अमेरिका के लोगों के पेट का दर्द दूर कर सकते हैं। ये हुनर पेटेंट करवाइए, इसको सामने लाइए। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन लेकर के बच्चा जो है इसको आगे ला सकता है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज को हम सामने लाएं, हम अपने होराइजन को वाइडर करें, हमारे सोच को बदलें। हम चंबा के रुमाल, कुल्लू की शाल तक ही ना रहें, इससे आगे भी जहां है। छुपे हुए लोग जो पट्टू बनाते हैं, जो पट्टू कंबल बनाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे पट्टू देखे जिसमें बर्फ अंदर घुस नहीं सकती, पानी अंदर घुस नहीं सकता। वो महिलाएं गांव में वो पट्टू कैसे बनाती हैं, कैसे ताना बाना वो जोड़ती हैं कि ग्लेशियर के अंदर भी ये गद्दी लोग वहां बैठ करके उसके अंदर सो जाते हैं। ये हुनर कहां से आया? ये हुनर किसी के पास नहीं। इसका जीआई लें, इसको प्रोटेक्ट करें, इस टेक्नोलॉजी को, और विश्व स्तर तक इसको लेकर जाएं। मैं इसमें सजग हूं और जब तक मैं वाइस चांसलर हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन सभी गुणों को बाहर ला करके रहूंगा और आपके इस कम्युनिटी साइंस कॉलेज को एक नई पहचान दिलाने में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति हम ट्रांसफॉर्म करें अपने विश्वविद्यालयों को। कैसे? हमें कहा जा रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। हरियाणा में क्या स्थिति है ये डॉक्टर आशा क्वात्रा जी बताएंगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में वो स्थिति नहीं। यहाँ हमारी जनता बहुत कम है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है 3000 स्टूडेंट्स पर यूनिवर्सिटी है। आज भी मेरी यूनिवर्सिटी में 1600 विद्यार्थी हैं।
3000 करने के लिए बहुत ताकत लगानी होगी। वन district, one university is not possible. Last time during our national education policy meeting, when Dr. Tej Pratap ji and Dr. Pankaj Mittal, they were also there over, I just addressed the issue and I have sent it in writing to Dr. Tej Pratap ji that just look into this point, that in small states, let us move to create umbrella universities. The universities which are already existing, make them umbrella universities, and the colleges, degree colleges in the surroundings of that university, link them with this university for degree awarding programs. Give them capacity of degree awarding. Now you can share the subjects with these colleges too. मतलब तो हमारा एजुकेशन को फैलाने का है। अब अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड में तो मुझे नहीं लगता ये संभव होगा, क्योंकि कितना ही धन चाहिए, कितना ही फाइनेंस चाहिए, कितने ही हमें रिसोर्सेज चाहिए, ये संभव नहीं होगा, असंभव है। उसको संभव बनाने के लिए जो विश्वविद्यालय हैं उन्हीं को अम्ब्रेला विश्वविद्यालय बना करके वहीं से हम शिक्षा की पद्धति को इस बदलाव ला करके जो मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी एग्जिट और किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा डिग्री कॉलेज के अंदर ऐसा भाव उठता है, कोई बच्ची अपने आप को ऐसा समझती है, काश मैं होम साइंस पढ़ती, काश मैं कम्युनिटी साइंस में होती, काश मैं फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ती, क्योंकि उसके अंदर वो हुनर था, वो पैशन जागा, उसको कॉलेज में जाके पता लगा। अगर वो डिग्री कॉलेज अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है तो वो कभी भी आकर वहां पर वो पढ़ाई कर सकती है। इसमें एक बहुत खुली छुट्टी है, एक लेक्सिटी है कि आप किसी भी वक्त, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, कभी भी आप बदलाव ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। Let us create these opportunities amongst our students. This is the motto of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that give education to all, give opportunity to all. The people who cannot just plunge into the areas of science and technology, let us take them into other areas. कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गाना अच्छा गा सकते हैं, कोई म्यूजिक अच्छा बजा सकते हैं, न जाने वो किस स्टेज पर वो उसका पैशन जाग जाए तो वो कहाँ जाए। अगर डिग्री कॉलेज में बैठे बैठे अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के अंदर ये भाव उठता है कि साहब मुझे तो म्यूजिक करना था, आपके पास है फैसिलिटी? नो। मैं समझता हूं किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसी फैसिलिटी नहीं कि वहां वो म्यूजिक के लिए उसको वो वेंचर दे सकें, वो प्लेटफॉर्म दे सकें। डिग्री कॉलेज में वो है। डिग्री कॉलेज में म्यूजिक का एक सब्जेक्ट होता है, उसको उसी वक्त वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंडर अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी, एंड ही और शी कैन गो ओवर देयर एंड जस्ट go far and brighten his or her talent in music, literature, simultaneously when he or she is working for science and technology. So I think this is the motto of our this नई शिक्षा पद्धति। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपका सब्जेक्ट सर्वोपरि है, हम सब आपके पीछे हैं, हम सब आपकी शक्ति बनेंगे। सभी geneticists, breeders, molecular biologists, agronomists, entomologists, microbiologists, animal geneticists, animal scientists, fishery scientists, all of us, we will be behind you. आप इसमें चमक लाएं, आप मार्केट में जाएं, हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए, आधारभूत लेवल पर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो सबसे आगे खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं। You are the builders of enhancing capacity of communities to become healthy, just and equitable. Let's create a society around us having education, food, nutrition, health, fitness and respect to one and all. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये समय दिया और मैं चाहूंगा कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करें और आपके सबकी कम्युनिटी साइंस का ये कॉलेजेस एक अम्ब्रेला यूनिवर्सिटीज का रूप धारण करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर। कम्युनिटी साइंस की तरफ आपका अपनत्व और विशेष लगाव हमेशा ही सराहनीय है और हमेशा ही हमें प्रोत्साहित करता है सर। हमें पूर्ण विश्वास है सर कि आपका वेरी नाइस सर। सर हमें ये पूर्ण विश्वास है सर कि आपके मार्गदर्शन में अवश्य ही कम्युनिटी साइंस एक नई दिशा और आयाम प्राप्त करेगा। साथ ही इस अवसर पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सब आपकी विचारधारा के अनुरूप कार्य कर कम्युनिटी साइंस एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़कर एग्रीकल्चर सिस्टम में एक नया लिंक स्थापित करेंगे और एक नई पहचान बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। Thank you so much, sir, for your enlightening words and thought-provoking ideas. Thank you, sir. नमस्कार।